Anil sir, please start. Yes, sir. Yes. Good morning to all of you. Myself, Assistant Professor Anil Gopale. It's time to roll out yoga mat and discover the combination of physical and mental exercise that for thousands of years have hooked yoga practitioners and around the globe. The beauty of yoga is that you don't have to be yogi or yogini to reap the benefits. Whether you are young or old, overweight or fit, yoga has the power to claim the mind and strengthen the body. Don't be intimidated by yoga terminology, fancy yoga studios, and complicated poses. Yoga is for everyone. Then our guest speaker is Dr. Anup Singh is a founder of International Institute of Fitness and Alternative Sciences. He is having more than 10 years of practice in the field of health, healing camps and fitness, mind, body and spirit. Have organized already lot of camps, seminars and lectures to create awareness towards the therapist and holistic way of healing. Then over to Principal Sir. Sir will guide you about the International Yoga Day. Thank you Yes, very sir. Over much. to you, Principal Sir. Thank you very much, Assistant Professor Anil Gopale sir. I am having the other teaching staff members also on this virtual platform. First of all, very good morning to all who are present on this virtual platform. I would like take this particular opportunity to welcome Dr. Anup Singh, the guest of the honor for the day, as well as the Yogacharya, who is there on this virtual platform. He has accepted our invitation and he is there with us. About Dr. Anup Singh, already our Anil Gopale sir has already mentioned about him, about his brief details, like he is an Yogacharya. And sir, I have seen your photographs also. What a fitness, what a physique you are having. The way you have balanced around your mind and your body, I really appreciate that. Seeing you people, what we do, what we get around is motivation. Because at this particular age, what happens of the tummies come outside. We people don't take care about our own body, right? So what I Absolutely. understand is in today, in this particular yoga day, the importance of yoga day, I would like to mention a brief about our Prime Minister Narendra Modi ji, because on 27th of September 2014, Narendra Modi ji, during his speech at the United Nations UN General Assembly, he proposed the idea of practicing the Yoga Day. And in his speech, Narendra Modi ji, he used the term yoga as an invaluable gift of Indian ancient tradition, and highlighted the importance of yoga for maintaining the harmony between the man and the nature. Only because of his proposal, what happened, the draft resolution passed by India was backed by 177 nations, and the first International Yoga Day was celebrated on June 21st in 2015. So almost 6 years now, we are celebrating this International Yoga Day. And my dear students, to inform you all that according to the UN, that is United Nations website, the theme for the International Yoga Day for 2021 is Yoga for the Well-being. How the practice of yoga can promote the holistic health of every individual, because we all know that we are all stuck around with this particular pandemic. So there are a lot of people who might be facing some kind of psychological problems, some mental problems, and some kind of physical problem. So what is it that yoga can do? Yoga can give a lot of relief from this psychological mental problem. Yoga can make you physically as well as mentally strong. It's rightly said that yoga
is a technique to bring in the state where you can see and experience simple realities of the life. You can enable your energies to become exuberant and ascetic. Your sensory body expands. This enables you to experience the whole universe as a part of yourself, making everyone, everything. This is the union that yoga creates. And over the last few decades, there has been an upsprung in the prevalences of yoga. Medical professionals as well as the celebrities are also adopting and recommending the regular practice of yoga due to its various benefits. I am very much sure that Dr. Anup sir, who is there with us, he is going to guide us with different types of techniques, different types of methods of yoga, and he is going to really provide us the ways and the techniques in what the yoga can be done. So, not taking much of the time, I once again welcome each and everyone, all my dear learners, my teaching staff members, and the guest of the honor, Dr. Anup Singh sir. Over to you, Anil Gopale. Yes, sir. Anil sir, should we provide? So, Go ahead. Dr. Anup Singh. Yes, sir. Dr. Anup Singh, you can start with your session. So, over to Anup Singh, sir. Okay. Thank you so much, everyone. सबसे पहले मैं अनिल सर, प्रोफेसर अनिल सर एंड प्रिंसिपल सर एंड पूरे के पूरे जितनी भी तिवारी कॉलेज की टीम है उन सबका मैं शुक्रिया करता हूँ 7th इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू अवेयर आवर सेल्फ बिकॉज योगा के बारे में पहले कोई नहीं जानता था बट द इनिशिएट जो आपने हमारे पीएन साहब जी ने लिया है जिसकी वजह से हम योगा के बारे में हम समझ पा रहे हैं इंटरनेशनल के लेवल पे पहले हम योगा को बहुत ही मतलब उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था जो बाकी की फिजिकल फिटनेस थी हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस देते थे rather than putting effort on yoga. So yoga it's not only आप जैसे आपने देखा होगा कि आप फिजिकल फिटनेस को लेके योगा से हमेशा देखते हैं कि योगा बस प्राणायाम होता है या तो फिजिकल फिटनेस होती है बट योगा इट्स नॉट ओनली दैट इज बियॉन्ड दैट तो मैं आपको स्टार्टिंग में उसकी थोड़ी सी एक ब्रीफ मैं आपको देना चाहूंगा क्योंकि ओनली वर्कआउट करना ओनली एक्सरसाइज करना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि योगा होता क्या है योगा एक लाइक बेसिक उसका स्ट्रक्चर क्या है क्यों हम योगा करते हैं और क्यों हमारे लिए जरूरी है सो व्हाट इज योगा एंड व्हाट इज नॉट योगा तो उसको समझना जरूरी है मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सब हम अपने हाथ यहाँ नमस्कार मुद्रा में रख लीजिए तो हम ओम के उच्चारण से इस क्लास को स्टार्ट करेंगे बिकॉज ओम उच्चारण इज द अल्टीमेट बीज मंत्र जिससे आप अपने मन को स्टेबल कर सकते हैं एंड यू कैन बी हियर एट दिस प्लेस एंड यू विल बी more focused and more calm. So just close your eyes. Deep breathe. Deep breathe out. Deep breathe in. Deep breathe out. Inhale. Exhale. Try to focus on your breathing. And be aware with your surrounding. Be aware with your body. So be calm, be relaxed, and try to observe this moment. This is a very special moment of ourselves. So we have to try ourselves to be in present, which is very important. So we'll start with 3 Om chanting.
ओम शांति शांति ओम। ओम शांति शांति शांति। Now we are starting with the Yoga Ganapati Mool Mantra. Om Ham Sam Bham Bhagavate Nitya Yoga Yuktaya Sachidananda Rupine Vinayakaya Namaha. Om Ham Sam Gam Bhagavate Nitya Yoga Yuktaya Sachidananda Rupine Vinayakaya Namaha. Om Ham Sam Gam Bhagavate Nitya Yoga Yuktaya Sachidananda Rupine Vinayakaya Namaha. एंड अभी हमारे जितने भी गुरुजन हैं, हमारे कॉलेज के जितने भी या आपके लाइफ में जितने भी गुरुज हैं, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, हम उनको वंदना करेंगे, गुरु वंदना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुदेव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Slowly rub your palm. Cup it in your eye. And slowly open your eyes. Thank you once again. Before starting our session, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है एंड योगा दिवस पे हमें ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज योगा। बिकॉज सबने योगा के बारे में सुना है, हमारे आपने देखा भी होगा यूट्यूब की वीडियोस के थ्रू या कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में हमने देखा होगा कि योगा मतलब हैंड स्ट्रेच कर लिया, या आपने बाबा रामदेव जी को देखा रहेगा कि वो प्राणायाम करते, तो आपको लगता है वो योगा है। ठीक है, सो मैं अगर आप में से कोई एक अनम्यूट करके मुझे बता सके कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगा, सो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मे भी आपको पता हो, या मैं जस्ट जानना चाहता हूं कि आप में से कुछ कोई अगर जानता है कि योगा का एक एक्चुअल मतलब क्या होता है, तो प्लीज कोई अनम्यूट करके मुझे जरूर बताइए। एनीबडी देयर? Peace, जी, peace, peace. पीस। ओके, सो योगा जैसे मैंने आपको बोला है, बहुत सारे जैसे पीस आपने बोला है, तो ऐसे लोगों के अलग अलग तरह के थॉट्स होते हैं योगा से रिलेटेड। पर जो अल्टीमेट मीनिंग है योगा का, सो ये संस्कृत वर्ड है जिसे योग कहा जाता है, और जिसका मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, सो जुड़ना को ही योग कहा जाता है। तो आप किसी से भी जुड़ सकते हो, जैसे अगर आप स्टडीज कर रहे हो तो आप उसको इतने अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन के साथ जब आप करते हो तो आपने स्टडीज के साथ योग कर लिया। अगर आप कोई साइकिल चलाना सीख रहे हो, बाइक चलाना सीख रहे हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वट आप कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें जब आप फुल ऑफ कंसंट्रेशन देते हैं, आपकी पूरे आपका मन, आपका शरीर, आप सबको एकाग्र करके उसके अपने एफर्ट्स देते हो, तो आपका वो योगा हो जाता है, वो आप कनेक्ट कर पाते हो उससे। तो उसे समझना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, योगा इज अ कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ गेनिंग मास्टरी ऑफ द माइंड। ठीक है, सो जो आपकी मास्टरी है अपने माइंड के ऊपर, क्योंकि आज के टाइम पे आपने लोगों को देखा होगा कि दे आर सफरिंग विद मेंटल डिजीज। तो 99% लोगों को फिजिकल प्रॉब्लम कहाँ से आती है? मेंटल की वजह से। तो बहुत सारे थॉट्स हमारे 24/7 चलते रहते हैं। अगर आपको पता होगा, हमारे दिन में मिनिमम 62 टू 75,000 थॉट्स आते हैं एवरी सिंगल डे। सो वी डोंट हैव कंट्रोल ऑन आवर थॉट्स। तो अगर आपने अपने थॉट्स को, अपने मन को कंट्रोल कर दिया, मन जीते जग जीत,
तो अगर आपने मन को जीत लिया तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं किसी भी फील्ड में, चाहे आप स्टडीज कर रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ। सो आप कहीं पे भी उस चीज को आप पा सकते हैं, कोई भी चीज हो। तो इस चीज को आपको समझना जरूरी है। सो योगा क्या है? योगा ओनली फिजिकल प्रैक्टिस नहीं है। इसमें क्या है? अपने आप को कनेक्ट करना, किसी भी चीज से आप कनेक्ट कर सकते हैं, उसे योगा कहा जाता है। और जो योगा होता है इसके 8 लिम्स होते हैं, जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। उसी का एक पार्ट है जो हम योगा समझते हैं। तो जो योगा हम समझते हैं, जो कि एक्सरसाइज प्राणायाम है, वो उसका एक एक लिम्ब है, जिसको बारे में मैं आपको बस एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं तो कि आपको समझ में आ जाए कि व्हाट इज योगा। ठीक है। सो जो लिम्स है योगा के, उसमें जो पहला होता है वो है यम। यम मीन्स क्या होता है कि सोशल कुछ एथिक्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। जैसे आपकी जो बिहेवियर्स है, आपको सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, वो चीजें एक रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना है, जिसे हम नियम बोलते हैं, सॉरी यम बोलते हैं। तो सेकंड है नियम। नियम मीन्स पर्सनल पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, पर्सनल एथिक्स होते हैं जिसके ऊपर आपको काम करना है। एक हो गए आपके सोशल लाइफ के एथिक्स, एक हो गए आपकी पर्सनल लाइफ के, कि आपको ये चीज ऐसे करनी है, या आपका स्वभाव वैसा है, आपका मन वैसा है, तो आपको उन चीजों के ऊपर काम करना चाहिए, आपके एथिक्स के ऊपर काम करना जरूरी है। उसके बाद जो तीसरा है वो है आसना, जिसे बोलते हैं पोजेस। और इन पोजेस जो ये एक लिम्ब है, इसी को ही हम योगा समझते हैं। पर जो आप जिसको आप योगा समझ रहे हैं वो लिम्ब है, अपने योगा का एक लिम्ब है, एक पार्ट है। सो जो चौथा है वो है प्राणायाम। ठीक है, तो ये योगा का ही एक पार्ट है। उसके बाद है प्रत्याहार। सो ये क्या होता है कि आपकी एक होती है आउटर साइड की खोज, सर्च, हम बाहर कुछ चीजों के क्वेश्चंस हम बाहर ढूंढते हैं, मुझे ये करना है, वो करना है, पर नो बडी फोकस इनसाइड। सो अंदर की जो सर्च है, आपका जो पैशन है, जो भी चीजें है वो अंदर होती है, तो उसको फाइंड आउट कैसे करना है, तो वो भी योगा हमें सिखाता है। ठीक है। उसके बाद आता है धारणा। धारणा का मतलब है फोकस। कोई भी चीज आप लाइफ में करते हैं तो उसको फोकस के साथ, धारणा के साथ जब आप करते हो, कॉन्सेंट्रेशन के साथ करते हो, तो आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो ये भी योगा का ही एक पार्ट है, लिम्ब है। उसके बाद है ध्यान। ध्यान मतलब द स्टेट ऑफ मेडिटेशन। सो इसमें क्या होता है कि जब आप कोई भी चीज करते हो, फोकस के लिए पहले आपको उसकी प्रिपरेशन करनी होती है माइंड को, जिसमें हेल्प करता है मेडिटेशन। तो ये भी एक लिम्ब है आपके योगा का। उसके बाद जो लास्ट है वो है समाधि। समाधि क्या होता है? स्टेट ऑफ वननेस। जब आप जितनी भी दुनिया में चीजें हैं उनको आप एक चीजों में समा देते हैं, वननेस जिसे कहा जाता है, तो वो है समाधि की स्टेट। तो आपने देखा रहेगा जो 1 से लेकर 8 तक जितने भी मैंने चीजें आपको बोली है, यम, नियम, आसना, प्राणायाम, धारणा और ध्यान, साथ समाधि, तो ये सब चीजें क्या है? ये लिम्स है योगा के। तो योगा बस एक ही चीज नहीं है। सो इसके अंदर सब कैटेगरीज है जिसके बारे में हमें समझना जरूरी है। सो जो हमारा शरीर है, आपने देखा रहेगा कि आज के टाइम पे जैसे कोरोना काल है, तो उसमें हम क्या करते हैं? अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, बिकॉज हमारे शरीर को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। सो व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो कोई भी चीज को काम करने की जो क्षमता होती है उसे एनर्जी बोलते हैं। सो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? सो वो एनर्जी हमें खाने से मिलती है, जो हम सोचते हैं प्राइमरी सोर्स है, बट दैट इज ओनली 30%। तो हम क्या करते हैं? अच्छा खाते हैं, वाइटामिन मिनरल्स खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, अच्छी चीजें खाते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी इम्यूनिटी बेटर होगी है, हमारी एनर्जी बेटर होगी है। तो भी आपने देखा रहेगा बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम होती है, बीमारियां हो जाती है, क्यों? स्टिल दे आर नॉट हेल्दी। वाई? बिकॉज जो आपकी शरीर की एनर्जी है वो आपको ओनली 30% मिल रही है ओनली खाने से। सो व्हाट अबाउट 70%? तो 70% आपको मिलती है आपकी फिजिकल एक्सरसाइज से, प्राणायाम से, अच्छी नींद से, आपके विचारों से, आपकी मनसा वाचा कर्मणा तीनों कैसे होती है, ये 70% उसके ऊपर मैटर करता है, जिसके ऊपर हम लैक कर रहे हैं। तो जब आप अपने आप को इस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, तो इससे क्या होता है? आपकी बॉडी एक्टिव होती है। सो उससे क्या करते हैं? तो आप मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं बॉडी के साथ में, और साथ में अगर आप अच्छा खाना भी इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये 100% इम्यूनिटी को बनाता है। सो अभी हमें समझ में आ गया कि खाना ही सोल्यूशन नहीं है। सो वी हैव टू
मेक आवर बॉडी मोर फ्लेक्सिबल, मोर स्ट्रेंथनिंग, और उसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे प्राणायाम को, जो कि हेल्प करता है हमारे इंटरनल लेवल पे। सो बॉडी के 3 कोश होते हैं। जो पहला कोश होता है वो है फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी जिसको, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं, विच इज फिजिकल बॉडी। उसके लिए जरूरत होती है योगा की, पोजेस की। जो पोजेस की बात करते हैं जिसे आसना बोलते हैं, तो आसनों को जब हम परफॉर्म करते हैं वो हमारी फिजिकल एबिलिटी को इम्प्रूव करता है। सेकंड है मेटाफिजिकल, जो कि आपका मन है। तो आपको आज देखेंगे बहुत सारे लोगों को मन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फियर्स है अलग अलग टाइप के। तो ये किससे रिलेटेड है? ये मेटाफिजिकल है, इसको आप देख नहीं सकते हो। तो उसके लिए हम उनको प्राणायाम के थ्रू, क्योंकि ये एक तरह के जो थॉट्स होते हैं उन्हें वायु का नाम दिया जाता है आयुर्वेद में। तो एक तरह की ये वायु है जो 24 घंटे, क्योंकि देखिए हवा है वो कहीं भी रुकती नहीं है, 24 घंटे चलती रहती है, फ्लो करती रहती है। इसी प्रकार से जो आपके थॉट्स है वो 24 घंटे चलते रहते हैं। ठीक है, तो उसको अगर आपको बैलेंस करना है, उसके लिए हम प्राणायाम जो उनको परफॉर्म करते हैं। जो तीसरा बॉडी का फॉर्म होता है वो है सोल बॉडी। पहला हो गया फिजिकल बॉडी, दूसरा हो गया मेटाफिजिकल बॉडी, और तीसरा हो गया आपका सोल बॉडी, जो कि आपकी आत्मा है, जो कि आप खुद हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या है? मेडिटेशन है या वर्शिपिंग है। जो हम जैसे ध्यान करते हैं या अलग तरह की वर्शिपिंग करते हैं, उससे आपकी आत्मा की एनर्जी मिलती है। तो शरीर की एनर्जी के लिए आप क्या कर सकते हैं? योगासन कर सकते हैं। अगर आपको मेंटल के ऊपर काम करना है, आपके मेटाफिजिकल के ऊपर काम करना है, तो प्राणायाम के लिए हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। और अगर आपको सोल बॉडी पे काम करना है, तो उसके लिए हमें मेडिटेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करना जरूरी है। आप इसमें से किसी चीज को स्किप नहीं कर सकते हो, अदरवाइज आप इनकम्प्लीट रहेंगे। आप भले कितने भी सक्सेसफुल हो जाइए, कितने भी पैसे आ जाए आपके पास, आपको उनसे भी आप जाके पूछ सकते हैं, स्टिल दे आर एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। वाई? बिकॉज वो इन चीजों को स्किप कर देते हैं। या तो फिजिकल फिटनेस पे फोकस देंगे, या तो वो मतलब इनमें से किसी ना किसी एक एस्पेक्ट के काम करते हैं, तभी हम उसको 100% स्वस्थ इंसान नहीं बोल सकते हैं, उनको हेल्दी इंसान नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि आपको फिजिकल, मेंटली और आपके सोल बॉडी, तीनों की चीजों के ऊपर काम करना जरूरी है। तो इनको मैं अगर समअप करूं, तो कुछ मैं लाइनें आपको समअप करके आपको बताना चाहता हूं कि योगा क्या है। योगा क्या है? जीवन की हर सांस योग है। जीवन की हर सांस योग है। सांसों पर गहरा ध्यान योग है। अपने तन से जुड़ना योग है। अपने मन से जुड़ना योग है। खुशियों को बांटना है। और मुस्काना सहज योग है। और खुद से खुद को जोड़ना योग है। तो योग कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई प्राणायाम नहीं है। योग एक खुद में ही बहुत बड़ी विजडम है, जिसके बारे में हमें समझना है। तो मैं इसमें एफर्ट्स इसलिए ज्यादा दे रहा हूं, क्योंकि आप सबको समझ में आना चाहिए कि योगा इट्स नॉट ओनली फिजिकल पोजेज और आसना, इट्स अबाउट मैनी अदर थिंग्स, जिससे आप सेल्फ डिस्कवरी कर सकते हो। वाई? अदरवाइज आप में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। वो भी इंसानों की तरह अपना खाना ढूंढते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और अपनी लाइफ पूरी गुजारते हैं। हम भी क्या करते हैं? काम करते हैं, खाना खाते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से नई क्रिएशन करते हो, और वही आपकी रेट रेस है, वो चलती रहती है। पर दिस इज नॉट आवर लाइफ, वी हैव बिगर पर्पस देन दिस। सेल्फ डिस्कवरी, आप कौन हो, क्या हो, व्हाट इज द रीजन आप इस दुनिया में क्यों आए हो, आप आप क्या हो, अंदर से आप क्या हो, अपने आप को जानना बहुत जरूरी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब आप एक अच्छे लेवल पे लाइफ में आ जाते हो, तब आपको ये सब चीजें समझ में आती है। ठीक है, तो मैं ज्यादा यहाँ पे एफर्ट ना लेते हुए हम आगे चलेंगे। ये योगा आई होप आपको समझ में आ गया हो। इसके अलग अलग लिम्स है, तो आगे जाके अगर पॉसिबल हुआ तो हम सर के साथ बात करके इसके ऊपर भी डिटेल क्लास करने की कोशिश करेंगे। तो आपको लाइफ के पर्पस समझ में आएगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। तो इसको समझना जरूरी है। तो अभी हम जो आज का सेशन है वो बेसिस है आसना के ऊपर। ठीक है, तो अभी ये थोड़ी सी थियरी थी जो आपको समझना जरूरी थी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी योगा क्लास, जिसमें पोजेस के ऊपर हम काम करेंगे, और काम करेंगे हम प्राणायाम के ऊपर। तो हमारे शरीर के ऊपर काम करेंगे, हमारे मेटाफिजिकल सिस्टम पे काम करेंगे, और लास्ट में हम थोड़ा टाइम देंगे हमारी सोल बॉडी के लिए, जिसमें हम थोड़ा सा ध्यान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे।
आई होप आप मुझे अच्छे से देख पा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्थितिल दंडासन में खड़ेंगे, ताड़ासन में खड़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारी दोनों लेग्स ज्वाइंट रहेगी, हमारे हैंड्स साइड पे रहेंगे, हमारे फिंगर्स पॉइंटेड डाउन, एंड क्लोज योर आईज, जस्ट ब्रीथ नॉर्मल, इनहेल, exhale, inhale, exhale. Now right leg out and left leg out little bit, shoulder level के बीच पे हम दोनों लेग्स को रखेंगे, और जो हमारे दोनों हाथ है वो हमारे कमर के पीछे इस प्रकार से हम दोनों हाथों को रखेंगे। आप देख लीजिए, सपोर्ट देंगे हम हमारी लोअर बैक को, और उसके साथ हम करेंगे ग्रीवा अभ्यास। ग्रीवा मीन्स नेक और अभ्यास मतलब एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसका संचालन करेंगे, इसकी मूवमेंट करेंगे, जिसके लिए हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो हेड है, हम ब्रीथिंग इन करते हुए हमारे हेड को पीछे की ओर लेके जाने की कोशिश करेंगे। गो बैक स्लोली एंड ब्रीथ आउट, कम सेंटर। नाउ ब्रीथ इन and breathe out. Now head back once again and come center. Now go forward, head down. आपका chin chest पे touch होगा and slowly up. Once again, slowly up and center. Again slowly down and center. Now we have to practice right to left, left to right. Again, breathe out and center. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in, center. Breathe out. Breathe in. Now lateral stretch. तो जो हमारा ईयर है वो हमारे शोल्डर को टच होगा। सो हम स्लोली हमारे नेक को राइट साइड टिल्ट करेंगे। इसमें हमारा जो शोल्डर है वो ऊपर नहीं खींचेंगे, शोल्डर वहीं पे रहेगा। बोथ द साइड, try to touch your ear on the shoulder. Beautiful, beautiful, perfect. Now we have to do rotation. ठीक है, अभी हम रोटेशन कैसे करेंगे? फर्स्ट हेड डाउन, देन राइट साइड, बैक, लेफ्ट साइड एंड डाउन। तो इस प्रकार से हम रोटेशन करेंगे, स्लोली स्लोली करेंगे, फास्ट नहीं करना है, स्लोली करेंगे हम। स्टार्ट क्लॉकवाइज सर्कल, now anti-clockwise slowly, very good, continue. Perfect. Now relax. Now hand down and leg out and relax. Now breathe in. Now close your eyes and try to feel your body, your blood circulation. Just close your eyes and relax. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Okay. Now next आसन is स्कंद चालन। इसके लिए हम दोनों लेग को ज्वाइन करेंगे। हम ताड़ासन की स्थिति में खड़े रहेंगे, जिसमें हमारे दोनों हैंड स्ट्रेट अप करेंगे शोल्डर लेवल पे एंड साइड। नाउ you have to keep your hand, see, you have to keep your hand like this and upward, ठीक है।
So hand को हम turn करेंगे and shoulder straight 90 degree. Stay there. Try to stretch upward and down. Then turn your palm and hand down. Very good. Once again, slowly up. Now turn your hand and slowly up 90 degree. Stretch your hands upwards, slowly down. Now turn your palm and down. Last time, once again, slowly turn your palm, slowly up 90 degree. Now stretch your hand upwards. Now slowly down. Turn your palm and slowly down. Okay? Okay. Now right leg out, left leg out, and just relax. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Why we are doing very slowly? Because आपका माइंड एंड बॉडी कनेक्शन होना बहुत जरूरी है. जब आप फास्ट चीजें करते हैं तो ओनली वो सुपरफिशियल लेवल पे होती है, तो यू कैनॉट कनेक्ट विद योर सेल्फ. तो जितना स्लोली आप अभ्यास करते हैं तो आपकी ब्रीदिंग और आपका शरीर दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है, तभी ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे. ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट स्थिति की तरफ जाएंगे. फिर से राइट लेग इन, लेफ्ट लेग इन स्थिति ताड़ासन. ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, हमारे दोनों हैंड्स को इंटरलॉक करेंगे और हमारे चेस्ट के ऊपर रखेंगे. यस, लाइक दिस. परफेक्ट. ठीक है, नाउ वी हैव टू स्ट्रेच. वी हैव टू टर्न योर हैंड लाइक दिस एंड स्ट्रेच फॉरवर्ड. वेरी गुड. स्टे 1 2 3 4 and 5. Slowly turn your hand and slowly keep it on your chest. Once again, slowly stretch forward and turn your palm and keep it on your chest. Now we have to stretch 30 degree. ठीक है, सो आपका जो फेस लेवल है वहां पे हम लोग स्ट्रेच करेंगे. अगेन स्ट्रेच, टर्न योर palm and stretch 30 degree. Straight, beautiful. 1 2 3 4 and 5. Slowly turn back. कुछ लोग यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ वो 90 डिग्री कर रहे हैं. 90 डिग्री नहीं करेंगे, 30 डिग्री आपके फेस के लेवल पे स्ट्रेट. ओके, once again 30 degree. Again stretch, hand straight. Beautiful, beautiful. Stay 1 2 3 4 and 5. Slowly turn back, keep it on your chest. Now we have to stretch 90 degree. So keep your hand forward and up and slowly, gradually stretch up and stretch on your toe. Also stretch up. Beautiful, beautiful. And stay 1. Try to balance. 2 3 4 and 5. Slowly come down. Turn your palm. Keep your hand on your chest. One more time, very slowly. Try to focus on your breathing. Once again, slowly up, stretch 90 degree. 1 2 3 4 and 5. Now slowly turn your palm. Keep it on your chest. Relax. Hand down and legs apart. Now breathe in, breathe out. Now try to feel your circulation. Try to feel your surroundings. Just be aware. Close your eyes. Just be aware with your body. Try to feel your body. Okay, now we go forward with our next asana. Again, keep your feet together. Okay, palms touching on your quads, on your thighs. Okay, now keep your hand straight side. Now
right leg out and left leg out. Okay, now keep your both hand bent from your elbows like this. Okay, now you have to turn backward, but you don't have to turn your hip. ठीक है, तो hip वहीं पे रहेगी. You have to keep turning your upper back. तो हम जो आपका सर्वाइकल है उसके साथ में सर्वाइकल, थोरेसिक एंड लंबर रीजन जो स्पाइन की वर्टिब्रास है उनको टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं. तो गो स्लोली, ट्राई टू टर्न बैक and look back and stay for 5 seconds. Come on, now start. Go back slowly. Stay. 1, stay back. Stay back, stay there. 1, 2, 3, 4, and 5. Slowly come forward. Beautiful. Again, other side, left side. Go back slowly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and back. Perfect. One more time. Little fast. Stay. 1, 2, 3, 4, and 5. Other side. 1, 2, 3, 4, and 5. Perfect. Okay. Now stay there. Now keep your right hand out. Okay. So अभी हमें single side twist करना है. You have to stretch back and immediately turn other side. This is a twisting आसन. ठीक है, so इसमें twist करेंगे हम. You have to look back like this. Each single count you have to turn backward and forward like this. Okay, now start 10 times. Come on. 1, beautiful. 2, no, immediately. 1, perfect. Go with the flow. 3, perfect. But आपके hip movement नहीं होने चाहिए. Try to focus on your hip. Try to keep your hip like this and turn forward. Beautiful. 10 टाइम करने के बाद आप रुकेंगे. Beautiful. Now keep your hand like this. Now open your palm. Open your hand. Now go slowly down. Keep your right hand in. Right leg, left leg in. And relax. Breathe normal. Right leg out, left leg out, and relax. Close your eyes. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Now we are performing last standing asana. Okay. Now start with the Sthiti Tadasana. Leg joint, hand side, fingers pointing down, head straight. Okay. Now first right leg out and left leg out, and दोनों legs के बीच में 1.5 feet का distance होना चाहिए. So shoulder के almost बाहर आपके दोनों feet होने चाहिए. ठीक है. So keep your hand again sideways. So अभी हम करने वाले हैं त्रिकोणासन. ठीक है. तो उसके लिए हम राइट हैंड को नीचे लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड स्ट्रेट अपवर्ड्स रहेगा, एंड ट्राई योर लेफ्ट अपवर्ड्स एंड ट्राई टू स्ट्रेच साइडवेज. अगर किसी को लोअर बैक की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो वो इसको अवॉइड करेगा या तो स्लोली करेंगे. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है. अगर बैक प्रॉब्लम है तो उनको इसको अवॉइड करना है. तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे. Okay, so now you start. Go slowly right ways, go slowly down, and stay there. 1, 2, 3, 4, 5, and slowly up. Left side, go down, and look up. 2, 3, 4, 5, and slowly up. Very good. Once again, right side, go down. Beautiful.
कुछ लोग अपनी बॉडी को आगे लेके जा रहे हैं. डोंट बेंड योर बॉडी फॉरवर्ड, ट्राई टू बेंड साइडवेज एंड स्लोली अप. Once again, side stretch. Beautiful, beautiful. And slowly up. Very good. Keep your both hands down. Right leg in, left leg in. Sthiti, Tadasana. Just relax. Right leg out, left leg out. Just relax. So अभी हम फ्लोर एक्सरसाइज करेंगे, जिसके लिए हम नीचे बैठ जाएंगे. Now sit down. Sit down properly. ओके. सबसे पहले लेग स्ट्रेट, हैंड साइड. इसको कहा जाता है स्थिति दंडासन. सो बैक स्ट्रेट, हैंड साइड. आपके हिप के साइड पे इन दोनों को हाथ को रखना है. फॉरवर्ड, स्ट्रेट, लुक फॉरवर्ड एंड ट्राई टू elbow straight, back straight, erect your spine. Breathe normal. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Okay. So now keep your both hands sideways like this. Now turn your palm upwards and slowly straighten your hand 90 degree. Now slowly, gradually try to go forward. अगर किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, लोअर बैक की प्रॉब्लम है, साइटिका प्रॉब्लम है, तो इसको परफॉर्म ना करें, अवॉइड करें. जितना पॉसिबल है उतना नीचे जाएंगे. डोंट ट्राई टू फोर्स योर बॉडी. बी केयरफुल. ओके. नाउ ट्राई टू गो फॉरवर्ड. Stretch from your spine and perform front bending. Try to hold your big toe and try to touch your head down on your knees. Stay there. अगर आपके toes hold नहीं कर पा रहे हैं, try to hold your knee or shin bone. Try to hold that and stay there at least for 10 seconds. Don't force your body. Don't force your body. Now slowly up. Again, hand straight up, 90 degree. Now keep your palm downwards. Now turn your palm and slowly down. Just relax. Breathe normal. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Now once again, we have to perform this. Again, keep your hand sideways. Now turn your palm upwards and slowly keep your hand 90 degree. Now breathe in and slowly breathe out. All the way go down. Try to touch your knee. Very good. Very good. Don't force. Slowly, slowly. Try to stay there and slowly up. Now hand down. Turn your palm and hand down. Just relax. Now keep your both feet apart like this. And just relax.
Inhale, exhale, inhale, exhale. Just relax. Okay, now keep your both leg together. Sthiti Dandasana. Now we have to fold our both leg and we have to sit on the Vajrasana. So this is how we have to sit on Vajrasana. आप देख सकते हैं दोनों जो हमारे फीट्स है वो इस प्रकार से बेंड होंगे. नाउ सिट ऑन वज्रासन. अगर आपको नी के इश्यू है, नी रिप्लेसमेंट हुआ है, तो ट्राई टू अवॉइड दिस. आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं अगर नी की प्रॉब्लम नहीं है, और अगर नी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप स्लोली स्लोली कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी अनकंफर्टेबल हो रहा है परफॉर्म करने के लिए तो आप प्लीज इसको अवॉइड कीजिए. सो जस्ट रिलैक्स. ओके, सो जस्ट रिलैक्स. अभी हम करेंगे उष्ट्रासन. तो जिसको परफॉर्म करने के लिए हम हमारे लेग्स को, अब मैं पीछे से आपको दिखा देता हूं पहले. वी हैव टू कीप आवर बोथ फीट अपार्ट. ओके, नाउ वी हैव टू स्टैंड ऑन आवर नीज. नीज के ऊपर स्टैंड करना है. देन वी हैव टू कीप आवर बोथ पाम बैक साइड. आपके लोअर बैक के ऊपर आपको हैंड्स को रखना है एंड आपके जो दोनों एल्बोज है वो इनवर्ड होने चाहिए लाइक दिस, एंड ट्राई टू गो डाउन लाइक दिस एंड पुश योर पेल्विस फॉरवर्ड. वंस अगेन मैं आपको इस प्रकार से दिखा देता हूं, इस साइड से दिखा देता हूं. वी हैव टू कीप आवर बोथ हैंड on your hip and try to push forward and try to look up and slowly down. Very good. Very good. Once again, slowly breathe in and go back. Inhale and go back. Try to push your pelvis forward and stay there. And slowly, slowly come up. Beautiful. Now sit down on Vajrasana. Just relax. Keep your both palm on your thighs and close your eyes and try to feel your circulation. Try to feel your heartbeat. Just relax. So ये आसना बहुत इफेक्टिव है, बेनिफिशियल है आपके जेनिटल ऑर्गन्स के लिए. फीमेल्स में अगर कोई भी आपको मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें बहुत बेनिफिट है, आपको मिलेगा इससे. और आपके लोअर बैक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. अगर आप हेल्दी है तो आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं. अगर आपके लोअर बैक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, नी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप इसको अवॉइड करेंगे. ठीक है. सो एक बार फिर से हम परफॉर्म करेंगे, इसके बाद हम अगले आसन की तरफ जाएंगे. तो वंस अगेन, stand on your knees. Keep your both palm on your back, lower back. And now go down slowly. Try to stretch forward through your pelvis and look upwards. Slowly up. Once again, breathe in and go back slowly. And breathe out. Come up all the way and sit down on Vajrasana. Beautiful.
आप सब तो बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी नाइस। ओके, नाउ वी हैव टू स्ट्रेच आवर नीज। जो दोनों नीज है उसको स्ट्रेच करेंगे हम लोग लाइक दिस। और अभी हम करेंगे शशांक आसन, जिसके लिए ये रिलैक्सेशन के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और इससे आपके लोअर जितने भी पार्ट्स है, आपके पेल्विस जो मसल है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो जिसके लिए हम क्या करेंगे, इनहेल करेंगे। सबसे पहले आप डेमो देख लीजिए, फिर आप कीजिए। बोथ हैंड अप करेंगे अपवर्ड्स 90 डिग्री एंड ट्राई टू स्ट्रेच योर स्पाइन अपवर्ड्स एंड ट्राई टू गो डाउन स्लोली एंड ट्राई टू टच योर फोरहेड ऑन द फ्लोर। और इसमें ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको आपकी हिप को लिफ्ट नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो नाउ स्लोली हैंड अप 90 डिग्री एंड ट्राई टू स्ट्रेच upwards your spine। और आपको हैंड्स को जोड़ना नहीं है, हैंड्स को ओपन रखना है। ट्राई टू ओपन योर हैंड लाइक दिस, यस लाइक दिस, स्ट्रेट, facing your palm forward, 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 everyone. Okay, now go down slowly, breathe out and go slowly down on Shashank Asana. Beautiful, beautiful. Just relax your spine, relax your pelvis, relax your hip, and stay there. And then slowly up. Beautifully, beautiful. Once again, stay there. Again, we have to go down. Breathe in and breathe out. And slowly up. Now both hand down slowly. Keep your both palm on your thighs. Now both legs straight. Sthiti Dandasana. Now slowly lie down on Shavasana. Slowly go down, lie down on Shavasana. This is the best asana to relax. So अभी हम लास्ट आसन को परफॉर्म करेंगे और उसके बाद हम प्राणायाम करके वाइंड अप करेंगे हमारे सेशन को। विद इन 5 to 7 मिनट्स में हम वाइंड अप करेंगे। ओके, जस्ट रिलैक्स, ओपन योर लेग्स and open your hands facing towards the ceiling like this. No, not upwards. Just lie down, relax. Okay, now slowly turn around on prone position on your stomach. Turn around like this. And relax on your hands like this. Open your leg. Just relax. Perfect. Lie down. Open your leg. And keep your heels inward. अपनी heels को inward रख के उसको relax कीजिए मकरासन में. It's called मकरासन.
दोनों जो आपके हैंड है वो इस प्रकार से रहेंगे एंड ट्राई टू कीप योर हेड लाइक दिस। इस लाइक दिस, इस प्रकार से आपके हेड को रखना है आपको। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, इट्स कॉल्ड मकरासन। So this is the best position to inhale maximum air into your lungs. So ये prone position इसको कहा जाता है। इसमें रह के आप ब्रीदिंग जितना डीपली करेंगे उतना ज्यादा मैक्सिमम ऑक्सीजन अपने शरीर में इनहेल इनटेक कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कीप योर बोथ लेग टुगेदर एंड place your both hand near to your chest like this, and now we have to perform Bhujanga Asana. So दोनों हाथ हमारे चेस्ट के पास में रहेंगे and now slowly try to stretch upwards. ठीक है, आपको नेवल से ऊपर का एरिया को स्ट्रेच करना है, आपकी पेल्विस का एरिया जमीन पर टच रहेगा। डोंट ट्राई टू लिफ्ट योर पेल्विस। ठीक है, नाउ लुक अप, stretch slowly and go down. Once again, now breathe, inhale, go slowly upwards and stay there. 1, 2, 3, 4 and 5. Slowly down and relax. Now again, keep your hand on Makarasana. Now turn again, turn around, turn your body on Shavasana. घूम जाइए, turn around, legs apart and side, palm facing upward. Just relax. Now slowly fold your both leg. Now we perform Pavan Mukta Asana. Now keep your both knee together and try to hold your knee like this with your hand and try to touch your chin on your knees and try to stay there. Now slowly release, relax. Okay, once again, hold your knees, try to touch on your chin. Perfect, perfect, perfect. Easy, relax, try to stay there, try to stay there. And slowly relax. सो पवन मुक्त आसन बहुत अच्छा है कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, डायबिटीज और डाइजेशन से रिलेटेड ये बहुत अच्छा आसन है। तो इसको आप कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो बहुत ही आपको हेल्प करेगा। आप एवरीडे इनको एम्प्टी स्टमक परफॉर्म कर सकते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ कीप योर बोथ लेग स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाउ बोथ हैंड upwards 90 degree. Now interlock your finger like this and stretch your body, stretch your finger upwards and stretch your toes downwards. So हमारे hands को हम हेड की तरफ स्ट्रेच करेंगे और पैरों को नीचे की तरफ से स्ट्रेच करेंगे, जिससे आपकी पूरी स्पाइन स्ट्रेच हो जाती है। यू फील perfect stretch in your body.
Now relax. Now take your left hand on your left thigh. Now fold your left leg. Now turn around on your right side. Now keep your hand on your thigh, left hand on your left thigh. And stay there. Now slowly keep your left hand on your floor near to your chest and try to push your body and sit down. Now sit down on comfortable position. आप सुखासन में बैठ सकते हो, पद्मासन में बैठ सकते हो. अभी लास्ट हम 2 प्राणायाम को परफॉर्म करेंगे and then we'll conclude our session. Now just relax, erect your spine, keep your fingers on ध्यान मुद्रा, जिसमें आपके इंडेक्स फिंगर और थंब दोनों टच करेंगे एक दूसरे को, and finger straight. It's called ध्यान mudra. So relax your back, relax your spine. Try to focus on your breathing. Now keep our right hand on विष्णु मुद्रा, जिसमें हम हमारी इंडेक्स फिंगर और हमारी मिडिल फिंगर को हमारे थंब पे टच करेंगे इस प्रकार से, और आपकी रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर स्ट्रेट रहेगी, और जो हमारा थंब है वो राइट नॉस्ट्रल पे जाएगा और लेफ्ट नॉस्ट्रल से हम इनहेल करेंगे. Now hold your breath. Now exhale from right side. Now inhale from right side. Now hold for few seconds and exhale from left side. Continue this practice for 5 times at least. Inhale from left side. It's called अनुलोम विलोम. नाड़ी शुद्धि भी इसको कहा जाता है, जिसमें आपकी चंद्र नाड़ी और आपकी सूर्य नाड़ी का शोधन किया जाता है, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपका मन शांत होता है और आपकी बॉडी में मैक्सिमम ऑक्सीजन आपके शरीर में पहुंचती है, और जिससे आप लाइफ में बहुत जो ऐसी ऐसी कंडीशंस होती है, मेंटल लेवल पे स्ट्रेस होता है, उसमें आपको ये बहुत हेल्प करता है. सो आपके फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे ये बहुत बेनिफिशियल है. इसके हजारों लाखों बेनिफिट है आपके लिए. बिल्कुल. सो जितना आप इसको फील करते हुए अपने लंग्स को एक्सपांड करके करेंगे, उतना ज्यादा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा. और इस चीज का ध्यान रखेंगे, हमें स्टमक से इनहेल नहीं करना है, हमें लंग्स को एक्सपांड करना है. और जब ब्रीदिंग कर रहे हैं तो ऐसे नहीं, आपको जबरदस्ती नहीं खींचना है, ऐसे नहीं खींचना है, स्लोली. ब्यूटीफुल. जस्ट रिलैक्स, इरेक्ट योर स्पाइन. नाउ लास्ट प्राणायाम वी गोना परफॉर्म इज भ्रामी. सो इसके लिए क्या करेंगे, हमारे जो पाम है उसको हमारे फेस पे रखेंगे, जिसमें हमारे इंडेक्स फिंगर है वो हमारी आईब्रोज के ऊपर रखेंगे, हमारी मिडिल फिंगर और हमारी रिंग फिंगर हमारी आईज के ऊपर रखेंगे, और जो हमारी स्मॉल फिंगर है वो हमारे नोज के पास में रखेंगे, और जो हमारा थंब है
उससे जो हमारा आउटर ईयर का जो एरिया है उससे हम ईयर को क्लोज करेंगे, और जिससे आपको बाहर की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए, तो अच्छे से बंद रखेंगे और हम उच्चारण करेंगे। सो ओम का जो म है उस साउंड को हम चैंट करेंगे एटलीस्ट फोर टू फाइव टाइम इसको परफॉर्म करेंगे। सो अच्छे से क्लोज कर लीजिए आपके ईयर्स को। नाउ ब्रीथ नॉर्मल। एंड बिगिन। सो ये ड्रामी बहुत अच्छा है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे आत्म के लिए। सो अगर किसी पर्सन को एंजाइटी, डिप्रेशन, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है, तो जब भी ऐसा फील होता है तो आप इसको 2 से 5 मिनट के लिए परफॉर्म करेंगे तो आप देखेंगे इमिडिएटली आपको उसमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और ये आपकी ब्रेन की जो वेव्स होती है उसको स्टिमुलेट करता है, जो अल्फा, बीटा, गामा जो भी फ्रीक्वेंसीज होती है उनको स्टिमुलेट करता है, जिससे आपका ब्रेन भी शार्प होता है और आपको अच्छी नींद आना शुरू हो जाती है, आप पॉजिटिव डिसीजन ले पाते हैं लाइफ में। सो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, एटलीस्ट आज के टाइम पे जिसमें हम बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं, बहुत ज्यादा लोगों से बातें करते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं सोशल मीडिया से। तो उसमें इन आसनों को करना और इन प्राणायाम्स को ऐड करना बहुत जरूरी है हमें हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, क्योंकि हम सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से हम हमारी लाइफ में सफर करते हैं। तो जब आप आपकी लाइफ के अच्छे डिसीजन ले पाएंगे तो आप लाइफ में सक्सेस को भी अचीव कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डेली बेसिस में इसको प्रैक्टिस करना, और तो आपको बहुत अच्छे मैजिकल रिजल्ट इसके मिलेंगे। सो स्लोली रिलैक्स योर हैंड डाउन, slowly rub your palm, cup it on your eye, then slowly open your eyes. Now open your palm and look at your palm.
and look straight. Thank you so much. Have a beautiful day. Take care. God bless you. Keep smiling. Thank you so much. Yes, Dr. Anup Singh, lot of thanks to you. Now, over to Daksha ma'am for vote of thanks. Yes, Daksha ma'am, over to you. Yes, sir. Yeah, thank you. Good morning to one and all present here for International Yoga Day, live yoga session organized by NSS unit of Sri Alatwari Degree College. I, Assistant Professor Daksha Chaudhary, Faculty of BAF Department and member of NSS unit, consider the occasion as an honor and privilege to extend the vote of thanks on the celebration of International Yoga Day. Yoga means addition of energy, strength, and beauty to body, mind, and soul. According to the UN website, the theme for International Yoga Day 2021 is Yoga for Well-being. That is, how the practice of yoga can promote the holistic health of every individual. Yoga renews the mind with confidence, it calms the mind and improves concentration and patience. I would like to take this opportunity to extend my sincere thanks and gratitude to our yoga instructor of the day, Dr. Anup Singh, founder of International Institute of Fitness and Alternative Science Borivali, for guiding us on importance of yoga and how everyone can practice yoga in daily life. I thank you from the bottom of my heart, sir. I would like to extend sincere thanks to our principal, Dr. Sanjay Mishra sir, for his kind support and guidance. Also, I want to express my heartfelt gratitude to all the student participants present for today's live yoga session. I would like to thank the faculties for their support and contribution in the success of Yoga Day session. We hope this live yoga session would encourage our students and faculties in rejuvenating their mind and the body, leading to a healthier lifestyle. Thank you once again to all the faculties and students. Have a nice day. Thank you. Thank you. Yes, sir. Thank you so much for beautiful session. Thank We you will so much. look forward to you also in future. Yes, Okay, thank you definitely, so sir. much. Yes, Yes. thank you. Thank you. Enter.